ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وآلانا وأولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مدح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ درود بحضور جانے جانا حضور جانے جانا جانے ایماں رحمت کائنات رونق کائنات رنگت کائنات خوشبو کائنات حسین کائنات جمیل کائنات جمال کائنات نبض کائنات روح کائنات کعبے کے بدر الدجا طیبہ کی شمس ضحیٰ حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ جی کی عظیم عظیم اہل بیت پر آپ کی کریم اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے وفا اور محبت کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہے. حضرات ذی وقار ماہ رجب المرجب شریف بہت ہی عظمتیں اور بہت ہی واقعات اپنے اندر رکھتا ہے جس میں سب سے عظیم جو معجزہ ہے وہ حضور جانے جانا کی معراج کا معجزہ ہے. اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے.
پچھلے جمعہ میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ اس کا تو ایک روزہ رکھ لے تو رب نیکیوں کے انبار لگا دیتا ہے. کوئی ایک بندہ روزہ بھی رکھ لے تو اس پورے ماہ میں رحمتوں کا مسلسل نزول ہوتا رہتا ہے. آج آپ احباب کے سامنے حضرت خواجہ خواجگان ہند کا اصلی راجہ نائب مصطفیٰ رئیس المحدثین فخر السادات سید السادات حضرت خواجہ حسن سنجرانی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، جن کا مشہور و معروف لقب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے. نائب رسول ہیں اور آپ کو بڑا ہی مقام و مرتبہ حضور جانے جانا نے عطا فرمایا. اصل میں بیلیو بات یہ ہے کہ جس کی نسبت حضور جانے جانا سے ہو جاتی ہے وہ بندہ باکمال بن جاتا ہے. آپ یہ سارے یہاں پہ آئے ہیں تو یہ سارے حضور کے صدقے سے یہاں پہ آئے ہیں. میں آپ کے سامنے آیا ہوں تو یہ حضور کی نگاہ کرم سے آپ تک پہنچا ہوں. ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے، ہمیں قرآن مل رہا ہے، ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ہی ملا ہے. رحمان ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے. کون جانتا تھا کہ رب کون ہے، لیکن حضور آئے تو آپ کے رب کا مقام بیان فرما دیا. ہمیں ہر چیز نسبت مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ کا مقام ہے یہ بھی در رسول کے تک پہنچنے کی وجہ سے ان کو ملا ہے. صحبت جو چیز ہوتی ہے نا، کسی کی صحبت، صحابہ کرام تھے، وہ صحابی کیسے بنے؟ وہ در رسول کے پاس گئے، حضور کے قدموں میں پہنچے، حضور کا چہرہ دیکھا، صحبت میں بیٹھے تو وہ سارے کے سارے صحابی رسول بن گئے. جو صحبت میں آ جاتا ہے، نسبت جس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقام بن جاتا ہے. آپ آج کے دور میں آپ یوں لگا لیں کہ وہ مشہور ہے کہ جناب لوگ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، لیکن بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دودھ میں پانی ڈالا جاتا ہے، جتنا مرضی پانی ہو اس میں دودھ ڈالا جائے، اگر 1 من پانی ہے اس میں آپ 20 کلو بھی دودھ ڈال دیں تو دودھ کا جو رنگ ہے وہ غالب آ جائے گا، اور اس پانی کی قدر بھی دودھ کی وجہ سے ہو جائے گی. حالانکہ پانی ڈالنا غلط ہے، لکھا ہوتا ہے کہ جو دودھ میں ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ جس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے پھر اس کی نسبت بھی کمال ہو جاتی ہے. بندہ پانی، پہلے لوگ کہتے تھے کہ جناب دودھ میں پانی ڈالا جاتا ہے، اب تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں جناب پانی کے اندر لوگ دودھ ڈال کے لوگوں کو بیچتے ہیں. لیکن جب پانی دودھ میں آ جاتا ہے یا دودھ پانی میں چلا جاتا ہے تو اس پانی کا رنگ بدل کے دودھ کو مل جاتا ہے، اور پھر جو دودھ کی قدر ہے وہ پانی کی بھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت اس کے ساتھ ہو گئی ہے. کپڑا، یہ ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے کو ہم 10,000 کا سوٹ لے لیں، 20 کا لے لیں، 15 کا لے لیں، 5 کا لے لیں، ہم اس کپڑے کو چومتے نہیں ہیں، چومتے نہیں. لیکن ایک سادہ سا کپڑا ہے، چھوٹا سا کپڑا ہے، اور قرآن مجید کے اوپر اسے غلاف کہتے ہیں، لیکن جب سامنے آتا ہے تو ہم اپنی آنکھوں کے اوپر رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے. جس کی نسبت جہاں جہاں بھی ہو جاتی ہے اس کا پھر مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام آپ کا بیٹا تھا تو آپ پہ کلمہ پڑھ کے ایمان نہیں لایا. یہ بتانے لگا ہوں کہ جو نسبت ہوتی ہے وہ بندے کو کہیں نہ کہیں کمال دے ہی دیتی ہے. حضرت نوح کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی ہیں، لیکن مقدر کی بات تھی، بدبخت تھا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا تھا، ایمان نہیں لایا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے
तू कलमा पढ़ और मुझ पे ईमान ले आ। लेकिन था वो नबी का बेटा। अब नबी कमाल जो रब ने जिसे नबूवत का ताज पहनाया वो कोई आम तो नहीं, लेकिन उसका अपना अब्बा था हजरत नूह अलैहिस्सलाम, लेकिन बेटा ईमान नहीं लाया। तो अब्बा जी ने बड़ा समझाया कि बेटा ना कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, कभी फायदा। और मैं कहता हूँ आज आ जाओ। वो जनाब आपकी बात नहीं मानता था, वो कहता था जी नहीं मैं ईमान नहीं लाऊंगा। फिर रब का अजाब आया, पानी आया, पूरी दुनिया में पानी आ गया। और लिखा गया है काबातुल्लाह को उस वक्त उठा लिया गया था और जितनी भी दुनिया थी सारी की सारी खत्म हो गई थी। फिर जोड़े जोड़े बचे। हजरत नूह का सगा बेटा अगर उसे निस्बत नहीं होती तो वो तबाह बर्बाद हो जाता है। और दूसरी तरफ आप देखें निस्बत कितना फायदा देती है। अस्हाबे कहफ, उनके पास उनकी चौखट पे बैठा एक कुत्ता, रब ने कुरान में फरमाया और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जिक्र फरमाया जिसकी निस्बत नबी हो, नबी का बेटा हो, अगर निस्बत साथ ना हो तो वो गुमराह हो जाता है। हो एक कुत्ता और अल्लाह के वलियों से प्यार करे तो रब उसका जिक्र कुरान मजीद में भी अता फरमा देता है। निस्बत लगी ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उसे निस्बत नसीब ना हुई। ये कहफ, सहाबे कहफ का कुत्ता, और जनाबे वाला 309 साल वो गार के बाहर बैठा रहा और वो 309 साल वो सोए रहे। उन्होंने कहा कि तू चला जा। जिस तरह वो बैठा रब ने उसके बैठने का जिक्र भी कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया। उसकी वजह ये थी कि इससे निस्बत मिल गई। सहाबे कहफ ने कहा कि तू यहाँ से चला जा। उसने अपनी जुबान से कहा था कि मैं भौंकूंगा नहीं। यहां से पता चलता है कि कुत्ते भी बड़ी नस्लों के होते हैं। कुछ कुत्ते वो होते हैं जो औलिया अल्लाह को भौंकते हैं और कुछ वो होते हैं जो सर झुका लेते हैं, कहते हैं जितनी देर आप बैठे रहेंगे हम आपके अदम में बाहर बैठे रहेंगे। 309 साल तक वो कुत्ता बैठा रहा। और फिर फरमाया गया है कि जब क़यामत का दिन होगा सहाबे कहफ 7 जन्नत में जाएंगे तो 8वां 7 कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। एक निस्बत नबी की ना मिली तो वो बाप सगा है तो वो जनाबे वाला दुनिया में हलाक हो गया। दूसरी तरफ सहाबे कहफ है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो भौंकता नहीं है। तो रब को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई, जब ये 7 जन्नत में जाएंगे तो 7 कुत्ता भी जन्नत में चला जाएगा। ये निस्बत आपको समझ लग रही है कि निस्बत कमाल का काम करती है। आप यहां से चले जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको हज उम्रे की तौफीक अता फरमाए। आप यहां से मना जाएं, वहां जाके देखते हैं कि लोग ना शैतान को कंकर मारते हैं। उसकी कभी आप वजह सारे बंदे जानते हैं क्या वजह? कंकर मारे जाते हैं। किस वजह से मारे जाते हैं कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को लेके जा रहे थे तो ये शैतान 3 जगह पे आके ना बार बार उसने रोका था। तो उस जगह शैतान की निस्बत हो गई तो आज मना में लोग उसे पत्थर मारते हैं। और ये ना मारेंगे तो हज पूरा नहीं होगा। इसकी वजह है कि उसे शैतान की निस्बत मिली तो उसे आज पत्थर मारे जाते हैं। है वो भी पत्थर, और दूसरी तरफ वो पत्थर है जिसे हम गारे सौर के नाम से याद करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हुजूर जाना को अपने कंधों के ऊपर बैठाते हैं, वहां पे चले जाते हैं। वो 3 दिन तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गार में रहे। तो जनाबे वाला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि अबू बकर घबराना नहीं, कुरान है ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि अबू बकर घबराना नहीं, एक मैं हूं, एक तू है और तीसरी रब की जात हमारे साथ है। एक वो पत्थर है कि अगर उसे कंकर ना मारे जाएं तो हज कबूल नहीं होता, और एक ये भी पत्थर है कि जहां लोग चला नहीं जाता फिर भी कोशिश करते हैं, गिरते 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 उस मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं और कहते हैं कि जहां हुजूर के कदम लगे हैं कभी एक जगह 1 मिनट हमें मिल जाए हम उनको बोसा अता फरमा दें। है वो भी पत्थर, है ये भी पत्थर। लेकिन बात ये है कि जनाबे वाला इसकी निस्बत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत
कि हुजूर जाने जाना और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हो गई है। अब कुरान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, फरमाया कि जिन्होंने मेरे महबूब को देखा, महबूब को देखा, फरमाया सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, वो गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, वो सारे के सारे। कुछ ऐसे कुरान फरमा रहा है कि कुछ ऐसे बंदे थे जो गूंगे थे, अंधे थे, उन्हें निस्बत हुजूर की नसीब नहीं हुई। उनमें अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा जैसे अजीम अजीम बंदे भी थे जो अरबी के ऊपर महारत रखते थे, हिकमत और दनाई में उनका मुकाम था। लेकिन कुरान फरमाता है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये वो थे जो अंधे थे, बहरे थे, नबीने थे, इन्हें कुछ नजर नहीं आता था। और दूसरी जगह पे कुरान मजीद इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो राह खुदा में अपने आप की जान, अपनी जान का नजराना दे देते हैं, अल्लाह फरमाता है कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगियों का भी शऊर नहीं है। एक वो बंदा है जिन्होंने हुजूर का जमाना पाया लेकिन हुजूर जाने जाना की निस्बत हासिल नहीं हुई। कुरान फरमाता है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। दूसरे वो हैं कि जनाबे वाला हुजूर जाने जाना के कदमों तक पहुंच गए, जिन्होंने अपने आप को राह खुदा में शहादत के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह फरमाता है वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगियों का शऊर नहीं है। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तल फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये जो फी सबीलिल्लाह है ना, ये फी सबीलिल्लाह का मफ़हूम बहुत वसी है। फी सबीलिल्लाह, सबीलुल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब का भी एक नाम है। फरमाया दुनिया वालों, अगर तुम कामयाबी करना हासिल करना चाहते हो तो दरे मुस्तफा तक पहुंच जाओ, हुजूर के कदमों तक पहुंच जाओ, रब तुम्हें कामयाबियां अता फरमा देगा। ये निस्बत की बात है, जिसे निस्बत कुरान मजीद की, जिसे निस्बत हुजूर जाने जाना की हासिल हो जाती है। एक लकड़ी है रेल, जिसे हम रेल का नाम देते हैं, उस लकड़ियां दो हैं। एक लकड़ी वो है जिसके ऊपर हम कुरान मजीद रखते हैं, दूसरी लकड़ी वो है जिसके ऊपर हम बैठते हैं। लेकिन वजह यह है कि इसकी निस्बत कुरान से हो गई, इसको हम सीने से लगाते हैं। और जिस लकड़ी की निस्बत पाक चीजों के साथ नहीं हुई, उसके ऊपर हम बैठते हैं। अब आप अहबाब को ये निस्बत की समझ लग गई होगी, और ये कितनी अजीम निस्बत है। हम नमाज सारे अदा करते हैं और नमाज सिर्फ और सिर्फ अरबी में पढ़ी जाती है। इसकी क्या वजह है? अभी चाहिए होना तो ये चाहिए था कि अगर हम पंजाबी हैं तो हम पंजाबी में नमाज अदा करें, अगर हम उर्दू बोलते हैं तो हमें उर्दू में नमाज अदा करें, अगर दूसरी जुबानें, कोई भी जुबान आप लगा लें, पश्तो लगा लें। लेकिन इन सारी जबानों में जिनमें हमें समझ लगती है, हम नमाज अदा करेंगे तो नमाज कबूल नहीं होगी। लेकिन अरबी में नमाज अदा करेंगे, अरबी में पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो अगरचे हमें माना ना भी आता होगा तो हमारी नमाज कबूल हो जाएगी। इसकी वजह यह है, रब बताना ये चाहता है तुम्हारी नमाजें तब कबूल होंगी जब तुम उस जबान में नमाज पढ़ोगे जो मेरे महबूब की प्यारी जुबान है। अरबी में जब हम नमाज अदा करेंगे तो फिर हमारी नमाजें भी कबूल हो जाएंगी। ये निस्बत की बात है, जिसकी निस्बत दरे मुस्तफ़ा के साथ लग जाती है फिर उसे घबराने की जरूरत नहीं रहती। क्या नाम, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुनफरिद नाम है और आप एक अजीम अजीम कमाल के, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकाम व मर्तबा अता फरमाया है। हम उनके चर्चे करते हैं, हम उनके गीत गाते हैं और नायबे रसूल हैं, बड़ा मुकाम व मर्तबा है। आज तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आप तो वना औज़ुबिल्लाह औलिया अल्लाह को रब के साथ मिला देते हैं। बाबा, हम उनके साथ नहीं मिलाते, लेकिन जो उनको रब ने अज़मतें अता की हैं हम वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलिया अल्लाह का बड़ा मुकाम है, और ये मुकाम इसलिए इन्हें मिला कि इनकी निस्बत हुजूर के कदमों के साथ हो जाती है। अगर निस्बत ना होती तो पत्थर सारे, एक वो पत्थर है जो जनाबे वाला
काबातुल्लाह की दीवार के साथ लगा हुआ है। बुखारी शरीफ अगर आप ज़ौक़ रखते हैं तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हदीस का नंबर है 1597। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तवाफ़ काबा कर रहे हैं, तो निस्बत कितनी अजीम चीज़ है। आपने ना तवाफ़ करते करते ना जिस वक़्त हजर अस्वद के पास पहुंचे तो आप जिस वक़्त चूमने लगे तो आपने क्या लफ्ज़ बोले थे? आपने फरमाया था कि अन्नहु जाइलल हजरिल अस्वदी, फरमाया कि ए हजर अस्वद मैं तुम्हें ना चूमता। फरमाया कि ए हजर अस्वद मैं तुम्हें ना चूमता, तुम एक पत्थर हो, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मैंने अपनी इन आंखों के साथ देखा है कि हुजूर जाने जाना ने अपने लब मुबारक तुझे लगाए हुए थे। हजरत उमर कहते हैं कि मैं तुझे ना चूमता, लेकिन चूम इसलिए रहा हूं कि तेरी निस्बत दरे रसूल के साथ हो जाती है। पत्थर भी जब हुजूर के साथ जिनकी निस्बत हो जाती है हम तो उनका भी अदब करते हैं। मस्जिद में पत्थर लगा, हम जनाबे वाला जूता उतार के आते हैं। इसकी वजह यह है कि इसकी निस्बत पाक है। एक पत्थर बाहर लगा है, उसकी मस्जिद के साथ निस्बत नहीं तो हम जूते उतार के जूते पहन के चले जाते हैं। ये बात बताने का मकसद है कि निस्बत बड़ी चीज है और ये औलिया अल्लाह का मुकाम, ये तो कमाल की बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि आपके दौर में ना एक बंदा मर गया, उसके जनाजे के लिए ना उसका बंदोबस्त किया गया। लोग उसे दफनाने के लिए गए तो वो चेहरा ना काबे की तरफ फेरते थे, लेकिन जब चेहरा काबे की तरफ फेरते थे तो वो खुद ब खुद चेहरा फिर जाता था, दूसरी तरफ फिर जाता था। उन्होंने फिर कोशिश की कि जनाब काबे की तरफ कर दिया जाए, दोबारा फिर पीछे हो गया। 3 4 5 मरतबा उन्होंने कोशिश की, लेकिन चेहरा काबे की तरफ नहीं जाता था। हाथ में गैबी से आवाज आई कि ऐ मुसलमानों इसे छोड़ दो, इसका चेहरा तुम लाख मरतबा भी काबे की तरफ करोगे तो इसका चेहरा काबे की तरफ नहीं जाएगा। आवाज आई कि इसकी वजह यह है कि ये औलिया अल्लाह के साथ दुश्मनी रखा करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने लोगों को फरमाया क्या लोगों, तुमने एक खास दिन है, उस दिन मछलियां नहीं पकड़नी, इस दिन ये काम नहीं करना। तो वो जनाबे वाला अगर दोबारा काम करते हैं तो रब उनकी शक्ल बंदरों में तब्दील कर देता है। लेकिन ये अल्लाह के वली हैं। फरमाया जो औलिया अल्लाह के साथ प्यार नहीं करता उनका अपने दिलों में बुग़्ज़ रखता है। जब आप फरमाया कि तुम लाख मर्तबा इसका चेहरा किबले की तरफ फेरो, ये चेहरा फिर पलट जाएगा, लेकिन ये तो दुनिया की सजा है, क़यामत का दिन होगा। फरमाया जो औलिया अल्लाह के साथ और उलमाए किराम के साथ मोहब्बत नहीं करता होगा, जब ये दुनिया से मरेगा इसकी हालत ये होगी, चेहरा काबे की तरफ नहीं उठेगा, और जब क़यामत के दिन इसे उठाया जाएगा इसका चेहरा अपना नहीं रहेगा बल्कि रीश का उसके सरदन ऊपर लग चुका होगा। फरमाया ये जो उसका चेहरा है ना, ये रब बदल के उसे रीछ में तब्दील फरमा देगा। ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह की निस्बत बड़ा फायदा देती है। और ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप तो कमाल लिखते हैं। आपसे पूछा गया कि सैयदी बताया जाए कि औलिया अल्लाह की निस्बत कैसे हासिल होती है, औलिया अल्लाह की निस्बत कैसे हासिल होती है, और कब बंदा विलायत के मुकाम तक पहुंच सकता है, किस वक्त बंदा औलिया अल्लाह का फैज हासिल कर सकता है। तो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ी अजीम बात लिखी। आप फरमाते हैं कि जो बंदा चाहता है रब उसे वलायत अता फरमा दे, वो रज के हुजूर के हुस्ने जमाल के तज़किरे फरमाए, रब उसे वलायत अता फरमा देगा। वो जो सारा दिन ये कहता फिरेगा मुख चंद बदरशा शानीए, मथे चमक दी लाठ नुरानीए, काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, मुश्ताक अखियां हिंद मदबरियां, सुबहान अल्लाह मा अजमला का। आपने फरमाया जो बंदा चाहता है रब उसे वलायत का मुकाम मर्तबा अता फरमा दे, वो हुजूर के हुस्ने जमाल के तज़किरे फरमाए, रब उसे वलायत की सीढ़ियां अता फरमा देगा। हुजूर जाने जाना के और मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह
आपने बड़ी अजीम बात लिखी। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि जो बंदा हुजूर जाने जाना के हुस्न मुबारक की बातें करता है, हुजूर के चेहरे मुबारक के हुस्न की बातें करता रहता है, आप फरमाते हैं रब्बे किबरिया की अजीम अजमत की कसम है, तब तक बंदा दुनिया से नहीं जाता जो हुजूर के हुस्न की बातें करे, तब तक वो दुनिया से नहीं जाता जब तक हुजूर जाने जाना अपना दीदार ना उसे अता फरमा दे। इसलिए फरमाया कि हुस्ने जमाले मुस्तफ़ा के तज़किरे किया करो, हुस्ने जमाले मुस्तफ़ा के गीत गाया करो। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि विलायत हासिल करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अगर चाहते हो कि तुम्हें मुकाम मिले, तुम्हें ताज़ीम हुजूर जाने जाना की करनी पड़ेगी, तुम्हें इज्जत हुजूर की करनी पड़ेगी। जो जितनी इज्जत हुजूर जाने जाना की कर देगा, रब उतना ही उसे मुकाम व मर्तबा अता फरमा देगा। इसलिए जिसकी निस्बत हुजूर जाने जाना से हो जाएगी, फिर वो जो चाहेगा रब उसे झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ज्यादा मुकाम व मर्तबे हैं, बहुत ज्यादा मुकाम है, लेकिन उनमें से दो आपके सामने रखने लगा हूं, इसलिए कि जो बंदा ताज़ीम मुस्तफ़ा करता है, रब उसे विलायत के दर्जे अता फरमा देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक उन्वान है, उन्वान बशरीयत, उन्वान बशरीयत, जिसका आज हर तबके के अंदर लोग अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या हुजूर जाने जाना के बारे में बकवासात करते रहते हैं। बशरीयत और नूरानियत में लोग बातें करते हैं। एक आपका उन्वान बशरीयत है और दूसरा उन्वान रिसालत है। जिन लोगों ने उन्वान रिसालत से माना वो लोग गुमराह हो गए, और जिन्होंने उन्वान रिसालत से माना वो लोग मुकाम व मर्तबे हासिल कर गए। जो लोग कहते रहे कि ये बशर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, वो उस दौर में अबू जहल जैसे बंदे बने, और आज के दौर में भी उनकी नस्लें चल रही हैं। जिस वक़्त हुजूर जाने जाना के दौर में जनाबे वाला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशरीयत की रट्टे लगाने वाले पता नहीं क्या कुछ कहा करते थे, आज उसी नस्ल में से हैं। हम कहते हैं हुजूर बशर हैं, लेकिन उनकी बशरीयत जैसा कोई दुनिया में बंदा नहीं मिल सकता। बशरीयत ही अगर माना जाए तो बड़े बड़े बशर आए, हम भी बंदे हैं, लेकिन एक वो हुजूर जाने जाना की बशरीयत है। हमारा मुकाम क्या है कि हम जब नमाज पढ़े तो किबला की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, लेकिन एक हम बंदे हैं किबले की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। एक वो रब का बंदा है, वो भी बशरीयत में आता है, लेकिन हम किबले की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। रब का हबीब जिधर मुंह करता है, रब किबला ही उधर बना देता है। जिधर रब का हबीब मुंह करता है, रब किबला ही उधर बना देता है। इसलिए कि मोहब्बत है ना, बशरीयत के ही अगर नुक्ते से जाना जाए तो हुजूर जाने जाना जैसा अजीम बशरीयत में भी हमें कोई नहीं मिल सकता। इसलिए कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मुकाम है बशरीयत में भी वो लामुकाम है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने मिंबर के ऊपर बैठे थे और लोगों में वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे, और आप ना इश्क की दुनिया में चले गए। तो इश्क की दुनिया में जाके आपने लोगों को मुखातिब करके कहा कि जिसने बायजीद बुस्तामी को देख लिया वो बंदा जहन्नम से आजाद हो गया, रब उसे जन्नत अता फरमा देगा। आपने ये मोहब्बत की लहर में आके ये जुमला फरमा दिया। अब एक बाबा जी थे मजलिस में खड़े हुए, तो कहने लगा मैं ना मानूं, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करूंगा। तो आपने फरमाया जी इसकी क्या वजह है? कहने लगे कि अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा जैसे गुस्ताख पता नहीं किस किस तरह के लोग थे। आप कहते हैं कि जिसने बायजीद बुस्तामी को देखा रब उसे जन्नत अता फरमा देगा, लेकिन आप ये मेरी समझ में बात नहीं आती कि ऐसे ऐसे काफिर थे जिन्होंने हुजूर जाने जाना को देखा लेकिन कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए। मैं ये आपकी बात तस्लीम नहीं करूंगा। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बाबा जी सारी जिंदगी आपने कहाँ गुजार दी है? अगर उन्होंने मोहम्मद को देखा है जो अब्दुल्ला का बेटा है इसलिए वो मुसलमान नहीं हुए, अगर वो
करीम आका अलैहिस्सलात व सलाम को रिसालत की नजर से देखते, अगर रिसालत की नजर से देखते, उन्होंने सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा समझा, इसलिए वो सारे के सारे गुमराह हो गए, उन्हें कलमा नसीब नहीं हुआ। और एक अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने रिसालत को भी माना और हुजूर जाने जाना को अपने कंधों के ऊपर भी रखा और गारे सौर तक पहुंचे। कल क़यामत के दिन सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक मेरे आका के साथ जन्नत में दाखिल हो जाए। एक वो है जिन्होंने सिर्फ मोहम्मद समझा और वो जनाबे वाला किसी को कलमा नसीब नहीं हुआ। एक वो थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी माना तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अगर बशरीयत की नजर में भी हम देखें तो हुजूर जाने जाना जैसा को बशर को लेके आओ। हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी आंख मुबारक निकल आती है तो आंख जिस वक्त जंग में निकली ना, हम बशरीयत के नुक्ते से भी देखें तो बशरीयत में भी हुजूर जाने जाना जैसा कोई बंदा नहीं हमें मिलेगा। हजरत कतादा की आंख निकलती है, हुजूर की बारगाह में लेके आ जाते हैं। यार बात यह है कि आंख बंदे की निकले तो बंदा भागता फिरता है कि यार कहीं से इलाज हो जाए, कहीं से मैं बेहतर हो जाऊं, लेकिन उन्हें पता था कि जो दरे मुस्तफा पे आ जाता है रब सब कुछ ही अता फरमा देता है। हजरत कतादा की आंख निकलती है, आंख लेके दरे मुस्तफा पे आ जाते हैं और आके कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंख निकल आई है, मुझे आंख चाहिए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए कतादा, अच्छा एक बात कर लेते हैं, तुम्हें आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? अब जन्नत किसी में के इख्तियार में हो तो कोई बात करता है ना। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए कतादा, तुझे आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? तो अर्ज करने लगे हुजूर, जन्नत आप अपनी मोहब्बत से अता फरमा दे, अपनी मोहब्बत से जन्नत अता फरमा दे, और आंख का सवाल मैं लेके आया हूं, ये आंख भी मुझे अता फरमा दे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआबे दहन लगाया और हजरत कतादा की आंख को लगा के उसी जगह पे रख दिया। अब हजरत कतादा कहते हैं कि मैं जब गलियों में चला करता था, गलियों में घूमा फिरता था, एक वो आंख थी जो मुझे अपने वालिदैन की वजह से जब मैं पैदा हुआ तो रब ने अता फरमाई। दूसरी आंख वो थी जिसको लुआबे दहन हुजूर जाने जाना का लग गया था। फरमाते हैं कि जो रब की तरफ से आंख मिली थी उससे इतना नजर नहीं आता था, जिसको हुजूर का लुआबे दहन लग गया था उस आंख से मुझे ज्यादा नजर आया करता था। अगर बशरीयत के नजर से देखें तो आप जैसा फिर और कोई बंदा मिल नहीं सकता। हजरत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैदान बदर का मौका था कि मेरी तलवार टूट गई, हुजूर जाने जाना आपके पास ना मैं एक छड़ी लेके आया, एक सोटी लेके आया, तो मैंने कहा जी हुजूर मेरी तलवार टूट गई है और अब ये मेरे पास छड़ी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रहमतों भरा हाथ लगाया। हम बशरीयत के नजर में भी देखें तो हुजूर जाने जैसा कोई बंदा नहीं हमें मिलेगा। आपने छड़ी को हाथ लगाया। हजरत उकाशा कहते हैं कि उतना तलवार काम नहीं करती थी जितनी फिर वो लकड़ी, वो सोटी काम करती थी। जिस काफिर को लगती थी उसे वो जहन्नम रसीद कर दिया जाता। हुजूर के हाथ मुबारक की ये बरकत थी। जहां जहां भी बशरीयत की नजर में भी देखें तो आप जैसा कोई नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम है हजरत सुलेमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया और कर्जा भी बेशुमार हो गया। हुजूर की बारगाह में आए, कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्जे वाले जीने नहीं देते, बड़ी तकलीफें देते हैं, तो कर्जा किसी तरह उतारना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे गुलामों को बुलाया और कहा कि सुबह तक हजरत सुलेमान का कर्जा उतारना है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना खजूर की चंद गिटकें ली, कहा कि ऐ मेरे सहाबियों जाके जमीन में लगा दो। उन्होंने जरा के जमीन में लगा दी। अब रात को लगाई है, सुबह के टाइम जिस वक्त गए तो वो खजूरें बन चुकी थी, फल लग चुका था। कमाल की बात यह है कि उन खजूरों को हुजूर जाने जाना का हाथ मुबारक लगता है तो सुबह सूरज निकलने से पहले पहले वो खजूरें पक भी जाती हैं और लोगों में तकसीम भी कर दी जाती। बशरीयत की नजर में भी अगर देखा जाए तो हुजूर जाने जैसा कोई बंदा
हमें नहीं मिलता। उंगली का इशारा करते हैं, रब चांद के 2 टुकड़े फरमा देता है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कमालात हैं। जिस नजर से भी देखा जाए आप जैसा हमें कोई नहीं मिलेगा। उन्वान था हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन बातें शुरू हो गई उनके नाना की। बात क्या हम यार करें, जो किसी दा आशिक होवे गल उसे नहीं करदा। हमारा तो दिल चाहता है कि हम सारी जिंदगी हुजूर के तस्करे करते रहे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप कातिलुल कुफ्फार भी हैं और आप मुजाहिद भी हैं। आपने बड़े काफिरों को वास्ले जहन्नम किया और बड़ा जिहाद किया करते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको फिर मुकाम मर्तबा क्या अता फरमाया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है 6040 इंटरनेशनल नंबरिंग है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन हजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी हदीस पाक को नकल फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्राइल अमीस को अपने पास बुलाया। कहा कि ए जिब्रील मेरी बारगाह में हाजिर हो जाओ। तो हजरत जिब्राइल अर्ज हुए, हाथ बांधे, कहने लगे जी रब्बे जलील मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए जिब्राइल मुझे ना दुनिया में कुछ बंदों के साथ प्यार हो गया है। क्या हो गया जी? प्यार हो गया है, इश्क हो गया है। तो ए जिब्रील मुझे बंदों के नाम ले लेके रब ने बताया। ये हदीस मुबारका है। जो अल्लाह के वली हैं रब फरमाता है कि मुझे उनके साथ प्यार हो चुका है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, या बारी ताला मेरे लिए क्या हुक्म है। तो रब ने फरमाया कि ए जिब्राइल जिनके साथ मुझे प्यार हुआ है तू भी उनके साथ प्यार फरमा। रब है ना, वहदानियत है, वो अपने साथ किसी को शरीक नहीं बनाता, अपने साथ किसी को शरीक नहीं बनाता। लेकिन जब हुजूर की बात आ जाती है, जब औलिया अल्लाह की बात आ जाती है, तो फिर अपने साथ वो शरीक भी बना लेता है। कैसे? पढ़े कुरान, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बेशक मैं अपने महबूब के ऊपर दुरूदो सलाम भेजता हूं। और ए ईमान वालो, हर बंदे को नहीं मुखातिब किया जा रहा, फरमाया जा रहा है ए ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब के ऊपर राज राज के दुरूदो सलाम पढ़ा करो। रब अपनी जात में किसी को शरीक नहीं बनाता, लेकिन जब हबीब की बात आती है तो फरमाता है कि मैं भी प्यार करता हूं, तुम भी प्यार करो। मैं भी सलाम पढ़ता हूं, ए गुलामों तुम भी मेरे महबूब के ऊपर सलाम पढ़ा करो। और दूसरी जगह ये हदीस मुबारक बुखारी शरीफ 6040 इंटरनेशनल नंबरिंग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए जिब्राइल मुझे फुला बंदे से प्यार हो गया है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल, या अल्लाह किस बंदे से प्यार हो गया है। हजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मुझे दाता अली हुजवेरी से प्यार हो गया है, मुझे बाबा फरीद से प्यार हो गया है, मुझे जनाबे वाला बाबा बुल्ले शाह से प्यार हो गया है, मुझे कोट मिठन वाली सरकार से प्यार हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाम नाम लेके पुकार रहा है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या बारी ताला अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जा तू भी जाके इनके साथ प्यार कर। अब हजरत जिब्राइल जब चलने लगे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए जिब्राइल रुक जाओ, रुक जाओ, आसमान पे जाओ, जाके फरिश्तों में ऐलान कर दो कि अगर तुम में से कोई फरिश्ता रहना चाहता है, अगर तुम चाहते हो कि जो फरिश्ते तुम बरकरार रहो, फरिश्तों का जो तुम्हारा मामला है वो बरकरार रहे, तुम्हारी अजमत बरकरार रहे, तो अल्लाह फरमाता है जिनके साथ मैं प्यार करता हूं तुम भी उनके साथ प्यार करो। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पैगाम लेके जाने लगे। रब ने फरमाया कि ए जिब्राइल रुक जाओ, ए जिब्राइल रुक जाओ। हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं, या अल्लाह अब मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए जिब्राइल खुद भी जाओ और तमाम के तमाम मलाइका के साथ आसमान से दुनिया में उतर जाओ
اور जाके देखो जिसका दिल पाक मुनव्वर और साफ है, जिसका दिल पाक है। दूध डाला जाए ना किसी बर्तन में तो पहले देखा जाता है कि बर्तन पाक है या खराब है, साफ है या खराब है। अगर धुला हुआ हो तो उसमें नूर डाल दिया जाता है, और अगर गंदा हो तो लोग दूध नहीं डालते। अब ये औलिया अल्लाह की मोहब्बत का मामला है। रब ने फरमाया क्या जिब्राइल, मैं फुलां फुलां बंदे से प्यार करता हूं, तू भी जा, साथ में फरिश्तों को भी ले जा, और जो जो उन लोगों के दिलों में जाके प्यार डाल दे, जो तेरे पास पाक दिल है, जो साफ दिल है, जो तू देखे कि दिल नूरुन अला नूर है, उन दिलों के अंदर औलिया अल्लाह की मोहब्बत को डाल दे। हर किसी के दिल में नहीं। अगर कोई आज के दौर में ये कहता है कि मैं दाता साहब नहीं जाता, मैं अपने दिल में बाबा फरीद के दरबार की मोहब्बत नहीं रखता, मैं जनाबे वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन के चिश्ती दरबार की तड़प दिल में नहीं रखता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके दिल में हजरत जिब्राइल ने प्यार डाला है, वो बंदा जहां भी हो तड़प यही रखता है कि काश कभी मौका आ जाए मैं दाता के कदमों में जाके बैठ जाऊं, कभी मुझे मौका मिले मैं बाबा फरीद के दरबार पे पहुंचूं, मुझे मौका मिले मैं बरेली के इमाम अहमद रजा की बारगाह में चला जाऊं। ये बात ज़हन में रखिएगा। मोहब्बत औलिया अल्लाह से वो करेगा, सही बुखारी है, जिसके दिल में जिब्राइल ने प्यार डाला होगा, और जिब्राइल ने उसके दिल में प्यार डाला है, जिसका दिल नूरुन अला नूर होगा। इसलिए मोहब्बत औलिया अल्लाह से ये रब की तरफ से मिलती है। आज मुझे और आपको मुबारक हो कि अगर हम औलिया अल्लाह से प्यार करते हैं तो फिर हम आज के दौर की बात नहीं है, ये तो फरिश्ते अज़ल से इन औलिया अल्लाह से प्यार कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़े बड़े काफिरों को वासिल जहन्नम फरमाया, और आपके दौर में अगर कोई उठ के इस्लाम के खिलाफ बकवास करता था, जिस तरह आज के दौर में वो फवाद वफाकी वजीर बकवास कर रहा है और जनाबे वाला मस्जिदों की बेहुरमतियां कर रहा है, बाएं खड़े होकर डांस करता है, आज के दौर में अगर उस जैसा कोई अजीम बुजुर्ग होता तो अब तक ये वासिल जहन्नम हो चुका। लेकिन हम लोग हैं, हम जनाब मस्जिदों के तकद्दुस पमाल होते रहे, और हमने बचाई तो अपनी इज्जतें बचाई, हमने बचाए तो अपने कारोबार बचाए, लेकिन वो अल्लाह के वली थे, जब हुजूर की बात आ जाती थी फिर किसी को नहीं देखते थे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जिंदगी में हर एक ने चले जाना है। हमारे अबाओ अजदाद चले गए, हमारे बड़े चले गए, आज हमें उनका नाम तक भी नहीं आता, उनका पता तक नहीं है। कितने कितने लोग हुकूमतें करते गए, उनके नाम मिट गए। अगर नाम आज भी जिंदा है तो जिन्होंने हुजूर से वफाएं की हैं उनका नाम जिंदा है। आज भी गाजी इल्मुद्दीन का नाम आता है तो लोग तड़प जाते हैं, दाता साहब का नाम आता है लोग कहते हैं कि वह हाजिर हो जाएं। आले सऊद एक हुकूमत गुजरी है, उन्होंने 3100 साल तक दुनिया में हुकूमत की है, लेकिन आज लोग उनको जानते भी नहीं है। उन्होंने सारी जिंदगी अपने आप को बनाया, लेकिन जिन्होंने दरे मुस्तफ़ा के ऊपर अपने आप को झुका लिया वो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन रब उनका नाम बुलंद फरमा देता है। हम आए हैं, हमने चले जाना है। दुनिया में कितने लोग आए, सारे के सारे चले गए, लेकिन नाम उसी का रहेगा जिसकी निस्बत दरे मुस्तफ़ा के साथ हो जाएगी। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरे दिल को चमका दे चमकाने वाले। ये सारी जिंदगी एक हुजूर के साथ प्यार करें, हुजूर की निस्बत का ख्याल करें। जहां हुजूर का नाम आ जाए वहां अपने सर को झुका लें। हम सर को झुका लेंगे, रब हमारे मुकद्दरों को बुलंद फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर जाने जाना की पक्की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए।